Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Lord Jesus, we bless you, we praise you. I am 2-3 minutes before the time. Today I was like 2 minutes late. So making up for those 2-3 minutes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dhanyavad. Thank you, Jesus. Shalom Alachem. Shalom Mahir ji. Akansha. Shalom Jai Masih ki. Reena Kumari ji. Jai Masih ki. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shalom, shalom. Hallelujah. Shalom, Sister Reena Khan, Millie Segal. Shalom, Tanuja Sethi. Hallelujah. Blessed be the Lord's precious name. Hallelujah. Hallelujah. The weather outside is a little bit dodgy. The winds are blowing and it's up and down. Let's pray that we have a proper internet connection so that the message of the Lord finds safe passage to the hearts of His people. Hallelujah. Lord, we pray that your Spirit will control the environs. Lord, that your angels will be dispatched in the atmosphere. Lord, that under the blood of the Lamb, your words that you intend to speak to your people will reach to their hearts. For your word is quick and living and sharper than any double-edged sword. Pierces even to the dividing asunder of the soul and spirit and joint and marrows. And very well discerns the thoughts, the intents of human heart. Hallelujah. As the rain falls on the ground and never returns void, so shall be your word. It shall prosper in where to send it, and it shall accomplish the purpose that you intend in your heart, Almighty God. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु. तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. Blood of the Lamb. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of the Lamb, blood of the Lamb, precious blood of the Lamb, precious blood of the Lamb. Today is the third day of the fasting. And those who want to have Holy Communion after this service, we'll have Holy Communion. 10 minutes की break के बाद Holy Communion लेंगे. आप Holy Communion के साथ तैयार रह सकते हैं और आज fasting का third day है. हालेलुया. धन्यवाद. यीशु मसीह आपकी महिमा हो. Lord Jesus, we invite your presence. Lord Jesus, we surrender ourselves under your sovereign authority. You are a king. You are a master. You are a redeemer. Lord, we surrender our hearts to you. Hallelujah. Lord, may your spirit move. May your anointing come. May your angels be present all around us, Father, wherever we are connecting from around the world. Your angels will be through the airwaves and through the radio frequencies, Father. Hallelujah. हम तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं खुदावन. तेरे और करीब आना चाहते हैं. तेरे कलाम को खोल, हम तुझे और जानना चाहते हैं खुदावन. तेरी आशीष का हाथ हमारे ऊपर हो. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. देयर आर मेनी मोर पीपल टू जॉइन अस, लेकिन हम शुरू करेंगे, प्रभु के कलाम में चलेंगे. हालेलुया. आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज दीजिएगा. टुवर्ड्स द एंड भेजिएगा.
ताकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं फाइनली एंड में, तो हम सब प्रार्थना विनतियों को प्रभु के आगे उठाएंगे। आप सभी लोग दुनिया के अलग अलग जगहों से आप कनेक्ट हो रहे हो, आप सभी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद। हालेलुया। आज अगर आपने मेरी पोस्ट पढ़ी होगी तो पोस्ट है लाइफ ऑफ जॉब। अय्यूब के जीवन में दुख आए। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का सवाल है, व्हाई डू राइचियस सफर? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द सफरिंग? और जब राइचियस सफ़र करते हैं, धर्मी दुख भोगते हैं, तो उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? इन कुछ बातों के ऊपर आज हम मनन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत आशीष मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में से कुछ बहुत अद्भुत बातें हम आज सीखेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 28, अय्यूब की पुस्तक और उसका 28 अध्याय में से मैं कुछ वचन पढ़ता हूँ। हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल आप निकाल लीजिए। अय्यूब 28, उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। सुनिए ध्यान से। Surely there is a vein for the silver, and place for gold where they find it. Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone. He setteth an end to the darkness, and searcheth out all perfection. The stones of darkness and the shadow of death. The flood breaketh out from the inhabitants, even the waters forgotten of the foot. They are dried up. They are gone away from men. As for the earth, out of it cometh bread, and under it is turned up as it were fire. The stones of it are place of sapphire, and it hath dust of gold. There is a path which no fowl knoweth. अय्यूब की पुस्तक में बहुत डीप मिस्ट्री है, बहुत डीप। 28 चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रेशस चीज़ों की बात की गई है, जैसे सिल्वर की, गोल्ड की, आयरन की, कॉपर की, सैफायर बहुत कीमती हीरे जैसे पत्थरों की, ऑनिक्स की 28:16 में, क्रिस्टल की 28:17 में, कोरल, पर्ल्स, रूबीज 28:18, टोपाज 28:19 और लैपिस लजूली, गोल्ड डस्ट, ऑल प्रेशस चीज़ों की। तो अय्यूब यहाँ पे बात कर रहा है कि सब प्रेशस जो चीज़ें हैं ये डार्कनेस के अंदर छिपी हुई हैं, और एक ऐसी डार्कनेस है, नो फाउल्स ऑफ द एयर इवन नोज द पैथ, गॉड कंसील्ड थिंग्स इन द हिडन चेम्बर्स। आपको मालूम, अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसके पहले वचन से यीशु मसीह पैराबल शेयर करते हैं। अ सोअर वेंट आउट टू सो, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा, और यीशु मसीह कहते हैं फाउल्स ऑफ द एयर आए, आकाश के पंछी आए, उसे चुक कर ले गए। और प्रभु बताते हैं कि वो फाउल्स ऑफ द एयर, आकाश के जो परिंदे हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं, डीमंस हैं। जब कलाम आता है परमेश्वर का, बदरूएं होती जो कलाम। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, मैंने एक औरत को देखा जो आगे बैठी थी कन्वेंशन में, उसके यहाँ पे दोनों शोल्डर के ऊपर ऐसे ड्रैगन बैठे हुए थे, एक इतने बड़े बड़े ड्रैगन, और वो उसके कान ब्लॉक कर रहे थे ताकि परमेश्वर का कलाम उसके अंदर ना जाए। ये बर्ड्स आते हैं, फाउल्स ऑफ द एयर, ये यहोवा परमेश्वर के कलाम को चुग लेते हैं, आपके अंदर जाने नहीं देते। लेकिन अय्यूब बता रहा है कि वो ऐसी सीक्रेट जगह है, नो डीमन हैज़ एवर इंटरसेप्टेड। और अगर इसके ऊपर फिर मैं मैसेज करूंगा जो इसके अंदर डीप बातें कर रहा अय्यूब, लेकिन मैं इसके 12 वचन में आपको लेकर आना चाहता हूं। बट वेयर शैल विजडम बी फाउंड, एंड वेयर इज द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग? विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दो बहुत पावरफुल चीजें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। फिर किसी समय इसके ऊपर हम और गौर करेंगे। विजडम, अय्यूब कहता है कि ये जो सीक्रेट प्लेसेस के अंदर कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, टोपाज, ऑनिक्स, कोरल्स,
बैरल, कार्बंकल, डायमंड, सिल्वर। सबसे पहले सिल्वर की बात करता है। आपको मालूम सिल्वर रिडेम्पशन की मेटल है। सिल्वर मीन्स ह्यूमन रिडेम्पशन। जीसस क्राइस्ट वॉज सोल्ड फॉर 30 सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर करप्टेबल मेटल है, गोल्ड इम्पेरिशेबल है। सो यीशु मसीह ने 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा, हालेलुया, उसकी 30 चांदी के सिक्कों की वैल्यू पड़ी, उसने हमें छुटकारा दिया है। हाले अयूब यहाँ पे बात कर रहा है, एक टनल में जा रहा है दुखों में, जब अयूब जा रहा है। और आपको मालूम अयूब के 3 दोस्त हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। अयूब के 3 दोस्त हैं, बल्कि 4 हैं, जिनमें से 3 बहुत रूथलेस हैं। अयूब के विषय में ओपिनियनेटेड है। अयूब के विषय में पहले धारणाएं बना रखी उन्होंने। जैसे दुनिया में सेल्फ राइचियस लोग होते हैं, अपनी थियोलॉजी से, अपनी डॉक्ट्रिन से लोगों की इवैल्यूएशन की होती है। तो इसका एक दोस्त अयूब को कहता है, यू आर वेरी प्राउड, यू आर राइडिंग हाई हॉर्सेस, सो गॉड इज ब्रिंगिंग यू डाउन। परमेश्वर तुझे हलीमी सिखा रहा है, इसलिए तेरे ऊपर ये विपत्तियां आई हैं। दूसरा उसका दोस्त कहता है, अयूब तेरे जीवन में निश्चय हिडन पाप होंगे, इसलिए यहोवा ने तुझे त्याग दिया है। और तीसरा उसका दोस्त कहता है, तेरे बच्चों ने, बेटे और बेटियों ने बदकारियां की हैं, इसलिए तेरे जीवन के ऊपर ये विपत्तियां आई हैं। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जल्दी से आप निकालिएगा अयूब की पुस्तक का पहला अध्याय, अयूब की किताब, उसका पहला अध्याय जल्दी से निकालिए। हालेलुया। बुक ऑफ जोब चैप्टर नंबर 1, एंड लेट मी रीड फॉर यू फ्रॉम वर्स नंबर 1। यहां पे लिखा, देयर वाज अ मैन इन द लैंड ऑफ ऑज हुज नेम वाज जोब। हिब्रू वर्ड है अयूब। बहुत से बाइबल स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत डिबेट की है, बड़ी रिसर्च की है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं अयूब का मतलब होता है अफ्लिक्टेड वन, जिसने बहुत दुख भोगे। लेकिन कोई इतना सर्टेन नहीं है इसके हिब्रू ओरिजिन का, इस वर्ड का, बट इट मैनी एग्री दैट इट मीन्स अफ्लिक्टेड वन। सो जोब अयूब के विषय में लिखा, और क्या लिखा, उसका प्रोफाइल क्या है, लाइफ प्रोफाइल देखिए प्रभु क्या कहता है उसके विषय में। जोब, एंड दैट मैन वॉज परफेक्ट। वो बंदा कैसा था? परफेक्ट। जैसे वचन में लिखा है, नूह परफेक्ट था अपनी पूरी जनरेशन में। टोल डॉथ हिब्रू वर्ड है। सारे हाइब्रिड थे लोग जितने थे, उनका डीएनए टेम्पर हो चुका था। दे वर ऑल ईवल, दे वर बेंट ऑन ईवल, दे वर डिफाइंग गॉड ऑलमाइटी, दे वुड नॉट hearken unto his voice, but Noah was perfect। और हिब्रू वर्ड है तमीम, जिसका मतलब बिल्कुल सिद्ध, कोई कमी नहीं। और दूसरी बात क्या लिखी है? पहली लिखी परफेक्ट, दूसरा लिखा अपराइट। अपराइट के लिए हिब्रू वर्ड है यशार। बोलिए मेरे साथ, यशार। आपको मतलब यशार का मतलब क्या होता है? यशार का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे बनी लाइन के ऊपर जाने वाला, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पे चलने वाला, अर्थात सीधे मार्ग पे चलने वाला। और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ स्ट्रेट। जैसे होमोसेक्सुअल गेज होते हैं ना, उसके ऑपोजिट होते हैं स्ट्रेट, सीधे मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। और तीसरी इसकी खासियत क्या दी गई है? और इसकी खासियत एक दी गई अपराइट। ये बंदा क्या है? अपराइट। हिब्रू वर्ड है श्योर। श्योर हिब्रू वर्ड का मतलब है द मैन हु वुड डिक्लाइन एवरी प्रपोजल फॉर ईवल। श्योर बहुत एक यूनिक हिब्रू वर्ड है। इसका मतलब है आपके पास कोई आया और आपको प्रपोजल देता, आइए आज पब चलते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक विंक लेते हैं, या थोड़ा सा कैबरे चलते हैं, किसी डांस प्लेस पे चलते हैं, लेट्स एंजॉय लिटिल बिट। आप उसे डिक्लाइन करते हो, आप कहते हैं नो, एब्सोल्युटली नो, दैट्स नॉट द पाथ दैट आई विल चूज टू ट्रेड अपॉन। अयूब ने बुराई को, बदकारी को हमेशा नो कहा। यह है इसका मतलब। अ मैन हु एस्चुएथ ईवल। तीसरा जो शब्द है, पहले मैंने आपको बताया परफेक्ट, उसका मतलब तमीम, बिल्कुल सिद्ध। दूसरा शब्द है अपराइट, यशार, सीधी लाइन में चलने वाला। तीसरा वर्ड है, तीसरा है फियर्ड गॉड। मैं चौथा ले रहा हूं पहले, एस्चुएथ ईवल। एस्चुएथ के लिए वर्ड है श्योर। मैन हु विल डिक्लाइन एवरी प्रपोजल फॉर ईवल।
आप बदकारी, बुराई और गलत कामों के लिए यहोवा की आज्ञा के विपरीत जाने के लिए जब उस व्यक्ति को प्रपोजल दोगे, वो हमेशा ना भूलेगा। और क्या बात लिखी और उसके विषय में, एंड द वन दैट फियर्ड गॉड, और वो जो यहोवा से डरता है। हिब्रू वर्ड है यारे, जो खुदा से डरता है। ये है प्रोफाइल इस बंदे का। तमीम है, परफेक्ट है, यशार है, सीधी लाइन पे चलता है, यारे है, यहोवा से डरता है, श्योर है, एस्ट्यूट ईवल, बदकारी को हमेशा क्या कर देता है, मना कर देता है। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में वन आफ्टर द अदर ट्रेजेडी आती है, एक के बाद एक ट्रेजेडी आती है। आपको मालूम, एक बात कहते हैं यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10 वचन में यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से एक बात करते हैं। यीशु मसीह उसे बड़ा सराहते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को। स्मरना एंड फिलाडेल्फिया आर द 2 चर्चेज दैट नेवर रिसीव्ड एनी रेप्रीमेंडिंग फ्रॉम द लॉर्ड। रिब्यूक नहीं मिली उन्हें। फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रभु के लिए खड़ी रही बुरे समय में, और प्रभु कहता मैंने तेरे लिए एक डोर खोला है। आपको मालूम, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, ये जो फिलाडेल्फिया की चर्च है, ये 16-17 सेंचुरी में शुरू हुई। जो एज है इसकी चर्च की, 16, 17, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, ये वो एज है जब मिशनरी लोग विश्व में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके जाने लगे, गॉस्पल दुनिया में जाने लगी, प्रचार होने लगा। प्रभु कहते हैं मैंने तेरे लिए डोर खोला है, और प्रभु प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहते हैं मैं तुझे उस विपत्ति की घड़ी से बचा लूँगा, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामे रखा और मेरे कारण लज्जित नहीं हुआ और मेरे काम में लगा रहा, इसलिए मैं तुझे उस आवर ऑफ ट्रायल से बचा लूँगा। जो विपत्ति जगत पे आने वाली है, 7 साल का शैतानी राज्य आने वाला। आपको मालूम, ये विपत्ति सडन आ जाती है, कई बार आपको पता नहीं लगता। सडनली कभी किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो जाता है, सडनली कोई क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती, कोई रिपोर्ट मिलती है कि आपको कोई भयानक बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है। सडनली कोई कोर्ट केस ऐसा आपके विरोध में डाल दिया जाता है, सडनली कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको ऐसे लगता है किसी ने आपके पाँव के नीचे से रग खींच ली है। अय्यूब के जीवन में ऐसा हुआ। इस व्यक्ति का कितना जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रोफाइल है। पहले उसके विषय में स्पिरिचुअल बातें लिखी हैं। अगर दूसरा वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा एंड देयर वर बॉर्न अनटू हिम 7 सन्स एंड 3 डॉटर्स। और वचन में लिखा हैंडसम बेटे थे और ब्यूटीफुल डॉटर थी, किसी की नहीं थी उस रीजन में। फैमिली ब्लेसिंग है, सबसे पहले स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। परमेश्वर के कैटालॉग में सबसे ऊपर होती है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हालेलुया। अगर आप जाते हो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने या लड़के के लिए बेटी देखने, कौन सी क्वालिटी देखते हो आप? क्या देखते हो? घर देखते हो, स्टेटस देखते हो, फिजिक देखते हो लड़के का, लड़की की ब्यूटी देखते हो? व्हाट डू यू सी? टॉप एजेंडा ऑन गॉड्स प्रायोरिटी इज स्पिरिट क्वालिटीज, स्पिरिचुअल क्वालिटीज। फिर आया है उसकी फैमिली ब्लेसिंग, और फिर तीसरे नंबर पे देखें 3rd वर्स में, हिज सब्सटेंस ऑल्सो वॉज 7,000 शीप, 7,000 भेड़े हैं, सुनिएगा ध्यान से, 3,000 कैमल, 3,000 कैमल हैं, 500 योक ऑफ ऑक्सन हैं, बैलों की जोड़ियां हैं 500, एंड 500 शी एसेस and a very great household, so that this man was the greatest of all men of the east। ये ईस्ट जो है, ये उस समय का ये मिडल ईस्टर्न रीजन है जिसे सारे को ईस्ट बोला जाता था। इस व्यक्ति के पास यहोवा की आशीष है, बुद्धि है, ज्ञान है, प्रकाश है, यहोवा का भय है, यहोवा के संग रिश्ता है, पारिवारिक आनंद, खुशियाँ, बच्चे, संतान है, सब कुछ है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है। और आगे लिखा है कि इसके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, किसी चीज़ की इसे कमी नहीं है। हालेलुया। अ मैन ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, ग्रेट वेल्थ, ए मैन हु इज़ परफेक्ट, अपराइट, a man who fears God, a man who escheweth evil, जो बुराई के किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, shunned evil लिखा है कई जगह। हालेलुया। तो आपको मालूम क्या होता है, इस व्यक्ति के लिए हेवन में डिबेट होती है।
कहाँ पे? हेवन में। बाइबल में लिखा है कि sons of daughter came to present themselves before God and Satan also came. वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था एक दिन कि accuser of the brethren, Revelation 12:10, accuser गया कहाँ पे? अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शैतान स्वर्ग में जाता है, शैतान को स्वर्ग में अभी भी एक्सेस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान को स्वर्ग में एक्सेस नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार में, देखो मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते हुए देखा। लाइक इलेक्ट्रोक्यूशन होती है, थंडर होता है, ऐसे यहोवा ने उसको लात मार के गिराया। अब उसके पास एक्सेस नहीं है, वो यहोवा के गार्डन्स में नहीं जाता, पैराडाइज में नहीं जाता, यहोवा की हजूरी में नहीं जाता। केवल उसको एक जगह एक्सेस है, वो है कोर्ट रूम ऑफ गॉड। यहोवा की अदालतों में वो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है एक्यूज करना। हालेलुया। और उस काम से भी उसे मुकम्मल रीति से गिरा दिया जाएगा। जब उसे गिराया गया तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कौन सी उसकी अबोड है। मैंने आपको बताया था रकिया, वो जो परमेश्वर ने जहाँ पानी थे, ऊपर पानी थे, वो अब खाली होगी जगह, क्योंकि नूह के फ्लड के समय सारा पानी नीचे आ गया। तो रकिया में, जिसे हेवनली प्लेसेस, हाई प्लेसेस कहा गया है, वहाँ पे उसकी किंगडम है, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, डोमिनियंस, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस लिखा है। वहाँ पे उसका अधिकार है और वो वहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक बड़ी अजीब बात चलती है कि यहोवा परमेश्वर शैतान को कहता है कि मुझसे पूछता है तू कहाँ से आया है? तो वो क्या कहता है? कहता है मैं पृथ्वी पे घूम फिर के आया हूँ। पतरस क्या लिखता है अपनी पत्री में कि तुम्हारा शत्रु, दुश्मन, शैतान, ही प्राउल्स लाइक अ रोरिंग लॉयन, ही प्राउल्स लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग whom he may devour। वो गरजते हुए शेर की नाई घूमता है पूरी पृथ्वी में कि वो किसे फाड़ खाए। शैतान एक समय एक ही जगह होता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में उसके दूत काम करते हैं उसके लिए। हालेलुया। तो नेचुरली अय्यूब के विषय में शैतान जानता है। प्रभु पूछता है कि तुमने मेरा दास देखा, वो मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरे मार्गों में चलता है, वो मुझसे डरता है, वो बुराई से दूर रहता है, वो धर्मी व्यक्ति है, वो सीधी चाल चलता है, वो यशार है, वो तमीम है, वो श्योर करता है, वो यहोवा ज़ारा है, यहोवा के भय में रहता है। तो क्या कहता है शैतान प्रभु को? पता आपको? शैतान कहता है वो तुम्हारे से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि तुमने उसे बहुत मटीरियल ब्लेसिंग दी है। You have given him so much wealth, you have given him so much prosperity, you have given him every material blessing, you have given him all, you have made him a famous man, there is none like him, that is why he loves you। जरा सोचें, शैतान हेवनली कोर्ट में आपके खिलाफ खड़ा होगा तो क्या दोष लगा सकेगा? कहीं ये तो नहीं कहेगा ये तो चंगाई के लिए आया है पीछे, ये तो चमत्कारों के लिए पीछे आया है, ये तो बड़ा बीज बो के बड़ी बरकत लेना चाहता है, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, गाड़ियाँ, बंगले, कारें, मटीरियल ब्लेसिंग, इसलिए तेरे पीछे आया है। वुड ही से लाइक दैट? या वो ये कहेगा ये इसलिए तेरे पीछे आया है क्योंकि नरक से डरता है, स्वर्ग जाना चाहता है? क्या कहेगा शैतान? या ये कहेगा कि ये सचमुच आपसे प्रीति करता है। तो एक कॉन्टेस्ट चला, कहाँ पे? हेवन में। शैतान प्रभु से कहता है आपने उसके इर्द गिर्द क्या किया हुआ है? बाड़ लगाई है। यू हैव हेज्ड हिम फ्रॉम ऑल अराउंड। तो आप हेज हटाइए। Satan, I believe very firmly that many times Satan wanted to intrude the life of Job. He wanted to make an intrusion in Job's life, but he could not go in. शैतान ने कोशिश की अय्यूब के जीवन में घुसने की, लेकिन वहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाड़ लगी हुई है, हेज है। एक वचन पढ़िए, ज़बूर साम 34 वर्स नंबर 7, 34 भजन का 7 वचन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड द राइचस एंड डिलीवरेथ हिम फ्रॉम ऑल ईवल।
तो मैं दो वचन आपको दो वर्ड यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड द राइचस, धर्मी जन के इर्द गिर्द यहोवा का दूत छावनी बांधता है। हिंदी में शायद ऐसा लिखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनकैम्प के लिए हिब्रू वर्ड है खाना। खाना हिब्रू वर्ड, जिसका मतलब होता है लेसीज, टू सराउंड, मिलिट्री एनकैम्पमेंट करना। आपको मालूम, इंडिया के कई बड़े बड़े शहरों में कैंटोनमेंट होती है, और जहाँ कैंटोनमेंट होती है, जैसे जलंधर के अंदर कैंटोनमेंट है, अंबाला में है, बड़े बड़े सिटीज़ में है। जब कैंटोनमेंट होती है वहाँ पे हज़ारों फौजी होते हैं, लाखों, बल्कि कई स्कोर्स ऑफ बटालियंस होती हैं। वचन में लिखा है, यही सेम ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है जो सामिस्ट यहाँ यूज़ कर रहा है। सामिस्ट कहता है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड लेज सीज, द एंजल ऑफ द लॉर्ड मेक्स मिलिट्री एनकैम्पमेंट, देयर इज हैवी हेवनली आर्टिलरी। बहुत असला और स्वर्गीय हथियार लेके परमेश्वर के दूत वहां पे दे ले सीज अराउंड अ राइचस मैन। और अराउंड एनकैम्प्स अराउंड, अराउंड के लिए जो वर्ड है हिब्रू वो है सवाब। सवाब बड़ा पावरफुल वर्ड है। सवाब का मतलब है गोल चक्कर बनाना, ऐसे कंपस इन अ सर्कुलर वे। आपके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खड़े करते हैं दूत। आपको मालूम, जो दुनिया के प्रोमिनेंट लोग होते हैं उन्हें जी सिक्योरिटी मिलती है, जिसे इंडिया में जेड सिक्योरिटी कहते हैं, जी सिक्योरिटी। उसकी 3 लेयर होती हैं। कितनी? 3। लेकिन जो यहोवा धर्मी को सिक्योरिटी देता है उसकी 4 लेयर होती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड, एक दूतों की वाड़ होती है। फिर जकरिया नबी के वसीले प्रभु कहता है, आई शैल बी राउंड अबाउट दी एज वॉल ऑफ फायर, मैं आग की दीवार बन के तेरे इर्द गिर्द रहूंगा। एक वॉल ऑफ फायर होती है धर्मी बंदे के इर्द गिर्द। हालेलुया। और आपको मालूम, एक हेज होता है यीशु मसीह के ब्लड का, 3rd लेयर ब्लड का हेज। और आपको मालूम चौथी लेयर कौन सी होती है? चौथी लेयर आप क्रिएट करते हैं जब आप वर्ड ऑफ गॉड को बोलते हैं, रिलीज करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड क्रिएट्स द 4th लेयर। सो यू हैव 4 लेयर्स। The VVIPs like, President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi, they have Z security, but you have 4 layers of security. Hallelujah. Satan cannot make an intrusion. वो अंदर नहीं घुस सकता। तो तब तक नहीं घुस सकता जब तक प्रभु उस लेयर को ना हटाए, सिक्योरिटी को, या आप पाप ना करें। अगर इंटरनल ब्रीच होगी, ये किला है आपके इर्द गिर्द, अगर आप इंटरनली ब्रीच करेंगे बदकारी करके, तो शैतानी चीजें अंदर घुसेंगी। तो इस केस में क्या लिखा है कि प्रभु से कहता है, कौन? शैतान। आपको मालूम शैतान किस चीज से डर रहा है? अय्यूब की। क्यों डर रहा है शैतान? एक तरह की जेलसी है उसके अंदर। व्हाट इज थ्रेटनिंग सैटन अबाउट जॉब? टेल मी। आप सोचते हो कि मटीरियल ब्लेसिंग, दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास। आप सोचते होंगे बेटों की, बेटियों की बरकत, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट की बरकत, ये तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है। शैतान खुद भी देता है। ये किस चीज से डर रहा है? किस चीज से थ्रेटन कर रहा है? चैलेंज किस चीज का है? वो प्रभु से कहता है, सुनिए गौर से, कहता है ये चीजें, ये लेयर हटा ले अपनी। लुक ही विल कर्स यू, कि वो तुझे कर्स करेगा। कर्स का मतलब वहां पे प्रोफेन करना नहीं, खुदा का नाम। हिब्रू में जो सेंस है उसका मतलब ही विल स्पीक नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू। ये कॉन्टेस्ट चला वहां पे। आपको मालूम किस चीज से डरता था शैतान? अय्यूब की इंटेग्रिटी से और अय्यूब की इन्फ्लुएंस से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़िए जल्दी से, अय्यूब के गुड ओल्ड डेज। अभी तो अय्यूब दुखों से गुजर रहा है, अब देखिए अय्यूब क्या कहता है अपने गुड ओल्ड डेज के विषय में। जल्दी से आप निकालिए कि 29 चैप्टर अय्यूब का, अय्यूब की पुस्तक, उसका 29 चैप्टर, उसके पहले वचन से मैं जल्दी से पढ़ता हूं। यहां पे लिखा, अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती,
जिन दिनों परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जिन दिनों में मेरे इर्द गिर्द हेज था, अपने ही इज गेटिंग नॉस्टैल्जिक, ही इज रेमिनिसेंट ऑफ हिज ओल्ड डेज एंड ही इज सेइंग रिमेंबर हाउ गॉड प्रॉस्पर्ड मी, ब्लेस्ड मी, प्रोटेक्टेड मी, गेव मी इन्फ्लुएंस इन माई ओल्डर डेज। तो क्या बताता है? कहता है जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सर पर रहता था, यहोवा की रोशनी चमकती थी उसके सिर पे, जिसे हेलो बोलते हैं ना, ऐसे गोल चक्कर, वो हेलो थी मेरे इर्द गिर्द। हालेलुया। जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में बैठने की तैयारी करता था, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते थे और अपने हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब मुझे धन्य कहता था। जब अय्यूब निकलता था, सिटी के फाटक के पास जाता था, जो प्रिंस होते थे, हाकिम होते थे, रूलर होते थे, किंग होते थे, जजेस होते थे, एल्डर होते थे, वो सब लोग चुप हो जाते थे। तब अय्यूब सिटी के फाटकों के पास आके अपना मुंह खोलता था और यहोवा की एंशिएंट विजडम निकलती थी। उसकी बुद्धि की बातें, उसकी काउंसलिंग की बातें, उसके प्रकाश ज्ञान की बातें सुनने के लिए हाकिम, राजा, बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते थे। अय्यूब को परमेश्वर ने रुतबा दिया था, अय्यूब को परमेश्वर ने यश दिया था, अय्यूब को परमेश्वर ने वैभव से भरा था। अय्यूब धनी था, वैभव से भरा था। हर क्षेत्र में अय्यूब यहोवा की बरकतों से भरा हुआ था। वचन में लिखा है यहोवा की आशीष की धाराएं उसके ऊपर बहती थी, उसके इर्द गिर्द यहोवा के जलाल की हेलो थी। वचन में लिखा जिस चीज को अय्यूब हाथ लगाता था वो धन्य हो जाती थी। हर कोई अय्यूब की बुद्धि की बातें सुनना चाहता था, सभी खामोश हो जाते थे। पूरा ब्रह्मांड के लोग अय्यूब का आदर किया करते थे। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज व्हाट जोब वाज, अ ग्रेट मैन। इतनी जबरदस्त इन्फ्लुएंस थी उसकी, प्रभावशाली व्यक्ति था। शैतान आपके जीवन से अगर कुछ छीनना चाहेगा, आपको मालूम सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? इन्फ्लुएंस एंड इंटेग्रिटी। इट्स नॉट मनी। डोंट टेल मी दिस मनी थिंग इज समथिंग बिग इन द आईज ऑफ सैटन। एब्सोल्युटली नॉट। दुष्ट लोगों के पास बहुत मनी है। It's influence. You know why influence threatens devil? Because when you have a life of influence, you are producing a generation that will walk with God. The influence on you, the integrity inside you will shine and will shape the life of many people. आपकी influence को, आपके प्रभाव को देख के कई लोग, जहाँ से आप गुजरते हो, जिस मोहल्ले में, जिस गली में आप रहते हो, आपके चरित्र को, आपकी इंटेग्रिटी को, आपके जीवन की इन्फ्लुएंस को देख के परमेश्वर का आत्मा उन्हें प्रभु की ओर ऑलरेडी खींच रहा है। आपको मेगाफोन लेके प्रचार करने की जरूरत नहीं वहां पे। योर इन्फ्लुएंस इज मोल्डिंग देम। शैतान इस चीज से डरता है। एक धर्मी व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस का जीवन जीता है प्रभु के लिए, इंटेग्रिटी से ओतपोत है, वो एक पूरी जनरेशन को प्रभु के लिए बदल सकता है। शैतान जनरेशन खोनी नहीं चाहता। दिस इज व्हाट डेविल वाज आफ्टर हिम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम गीत गाते हैं ना, एक जबूर है, इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। योर इन्फ्लुएंस, गॉड विल गिव यू ए लाइफ दैट विल इम्पैक्ट द नेशंस ऑफ द अर्थ। आपको मालूम यीशु मसीह मुझे 120 देशों में ले गया सेवा के लिए। छोटे से गांव से, छोटे से घराने से प्रभु ने मुझे उठाया। आपकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। डोंट रन आफ्टर वेल्थ, डोंट रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, run after spiritual virtues. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। आपको मालूम परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में अपनी आशीष की
ओवर शैडो करके रखी थी। और अय्यूब क्या करता था, एक वचन और पढ़िए जल्दी से, हालेलुया, पहला अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। एंड हिज सन्स वेंट एंड फीस्टेड इन देयर हाउसेज एवरी वन हिज डे एंड सेंट एंड कॉल्ड फॉर देयर 3 sisters टू ईट एंड ड्रिंक विद देम। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी कैसी पार्टी करते थे उसके बच्चे, बेटे और बेटियां पार्टी करते थे। तो आगे क्या लिखा है, एंड इट वाज सो व्हेन द डेज ऑफ देयर फीस्टिंग वर गॉन अबाउट दैट जॉब सेंट एंड सेंटिफाइड देम। तो अय्यूब क्या करता था, जब वो ये सब कुछ कर लेते थे, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को बुलाता था और उन्हें शुद्ध करता था, सेंटिफाई करता था। एंड रोज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर्ड बर्न्ट ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देम ऑल, फॉर जॉब सेड, अपने दिल से ये कहता था अय्यूब, इट मे बी दैट माई सन्स हैव सिन्ड, दैट sons have sinned and cursed God in their hearts, thus did Job continually। अय्यूब क्या करता था, जब उनके दिन वो जश्न करते थे, पार्टियां करते थे, अय्यूब उनको बुलाता था, उन्हें सेंक्टिफाई करता था, बेटों को, बेटियों को, और होम बलियां यहोवा के आगे चढ़ाता था। अपने दिल में ये बात सोचता था, कहीं इन्होंने यहोवा के खिलाफ पाप ना किया हो, दे मे नॉट हैव कर्स्ड गॉड, ये बोलता था। आपको मालूम ये बात किसने पिक कर ली, फाउल्स ऑफ द एयर, जो मैंने आपको बताया, आकाश के पंछी जो बदरुएं हैं, ये चीज़ सेटन ने पिक कर ली और यही चीज़ को उसने यहोवा के आगे प्रेजेंट किया। रिमूव द हेज, टेक अवे द ब्लेसिंग, सब कुछ ले ले उससे, फिर पता लगेगा कि वो तुझे क्यों प्यार करता है। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो गॉस्पल प्रीच करते हैं ये फ्लेकी गॉस्पल क्यों है, क्योंकि ये गॉस्पल ऐसा है जिसमें लोगों को संसारिक चीज़ों का प्रलोभन दे के मसीह के पीछे बुलाया जा रहा है। ये असली खजाने नहीं जो यहोवा देता है। हालेलुया। और आपको मालूम क्या हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विपत्ति आ गई अय्यूब के ऊपर, और सिंगल डे में आ गई। हालेलुया। और मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, हालेलुया, एक वचन, हालेलुया, अय्यूब की पुस्तक में से ही पढ़ते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ पे 6 वचन, नाउ देयर वाज अ डे व्हेन द सन्स ऑफ गॉड केम to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord, said, from going to and fro in the earth। अगर आप पढ़ेंगे ना, सेटन पहले ये काम नहीं करता था टू एंड फ्रो जाने वाला। सेटन पहले अप एंड डाउन चलता था। कहाँ पे? लिविंग स्टोन्स के अंदर, आग के स्टोन्स के अंदर चलता था अप एंड डाउन, और यहोवा के आगे प्रीस्ट का काम करता था, वर्शिप लीडर था। लेकिन जब इसे निकाल दिया गया, अब ये क्या काम करता है? ये राउंड राउंड ऐसे घूमता है। और अय्यूब क्या करता था? अय्यूब होम बलियां चढ़ाता था, जानवरों की कुर्बानियां देता था, जानवरों का लहू जगवेदी के ऊपर उंडेलता था, और होम बलियां और मेल बलियां यहोवा के आगे चढ़ाता था। अय्यूब की किताब के पहले पन्ने में ही खून है, लहू है। हालेलुया। आपको मालूम 12 अध्याय एक्सोडस में, निर्गमन की पुस्तक में, यहोवा ने अपने लोगों को कहा, मैं मिस्र की गुलामी से तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन यहोवा ने कहा, गोधूली के समय हर एक परिवार अपने सदस्यों के अनुसार एक मेमना लेना, 10th डे को मेमना लेना, उसको 14th डे को, जब चांद पूरा होगा, जब जिसे पूर्णमासी बोलते हैं, फुल मून होगा, उस दिन उसे वध करना, और उसके लहू को परमेश्वर ने क्या कहा? अपने घर के बाहर ऐसे, एक यूं ऊपरली चौखट पे, एक यूं और एक यूं, ये ताव का निशान है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं अलफ और ताब हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, अलफ और ताब। एथ जो मैं आपको बता रहा था, बेरेशित 12 एथ एलोहीम, बेरेशित 12 एथ एलोहीम, बेरेशित 12 एथ एलोहीम में, जो मैं पहले आपको बताया इस 7-fold टीचिंग के अंदर, एथ
ये यहाँ पे एथ आता है, यहाँ पे वायथ आता है। हालेलुया, ये यीशु मसीह का नाम है। आपको मालूम नीचे प्रभु ने क्यों नहीं बोला था लहू लगाने के लिए? ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, नीचे नहीं लगाना। क्योंकि अगर वो नीचे लगा के बाहर निकलते तो इब्रानियों की पत्री के अनुसार वो क्या बात होती? उन लोगों के विषय में लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह की वाचा के पवित्र लहू को अपने पाँवों के नीचे रोन दिया है। और वचन बताता अब उनके लिए मोक्ष नहीं है, इसलिए उन्होंने ताब का चिन्ह बनाया। और आपको मालूम जो मौत का फरिश्ता आया उस रात, वो किसकी लाइफ क्लेम करने आया था? फर्स्ट बॉर्न की। मौत के फरिश्ते को ये आज्ञा थी कि जितने पहलौठे हैं सबका जीवन ले लेना है। आपको मालूम प्रभु ने व्यवस्था में क्या कहा था? प्रभु ने अपनी व्यवस्था में कहा था जो मैट्रिक्स को खोलेगा, गर्भ को खोलेगा पहलौठा, वो मेरा है। और इस्राएलियों ने अपने पहलौठे दिए नहीं यहोवा को। फिर प्रभु ने बाद में व्यवस्था में मूसा को यह बताया कि अगर तुम अपना पहलौठा मुझे नहीं देना चाहते तो उसे रिडीम कर लेना, उसका मूल्य उतार के उसे रिडीम करना। हर एक पहलौठे को मारता वो मौत का फरिश्ता, लेकिन मौत का फरिश्ता उस घर में उस पहलौठे को नहीं मार पाया जहां बाहर क्या लगा था? खून लगा था। हालेलुया। अय्यूब खून देता था, लहू की कुर्बानी देता था, और लहू की वो जो कुर्बानियां थी वो अय्यूब के घराने को ढांप के रखती थी। हालेलुया। आपको मालूम आत्मा की दुनिया में एंजल्स क्या देखते हैं जब आपके घर के बाहर आएगी पेस्टिलेंस? मैंने आपको बताया था साम 91 में पेस्टिलेंस के लिए वहां पे वर्ड है पखाड। पखाड एक कैनानाइट गॉड है, डीमन है। प्रभु कहता है कि वो प्लेग तेरे घर के पास नहीं आएगी। हिब्रू वर्ड है पखाड। पखाड का मतलब है वो डीमन आएगा, कैनानाइट डीमन। अलग अलग दुनिया के धर्मों के पैंथियन के डीमंस अनलीश करता था। यहोवा उन्हें अनुमति देता था, वो इसराइलियों को मारते थे जब इसराइली यहोवा की आज्ञा तोड़ते थे। तो प्रभु कहता है वो पखाड़ तेरे घर के निकट नहीं आएगा। ये जो प्लेग्स हैं ये डिमोनिक एंटिटीज हैं। ये जो प्लेग अभी चल रही है कोविड-19, ये भी डिमोनिक एंटिटी है। वचन को पढ़ें, घुसें इसके अंदर, आपको सब समझ देगा प्रभु। तो वो पखाड़ तुझे छूने नहीं पाएगा। मैंने साम 91 के ऊपर आज से 35 दिन पहले एक मैसेज दिया है, उसको सुनिए, मेरी फेसबुक में होगा। दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज। These plagues, these viruses are demon entities. You know, now scientists are saying, God told me when it just hit the earth that this is going to mutate. It's mutating now. Though it is dead, but when it enters your organism, it latches to your DNA. It, gets life from your RNA. It downloads all the information from your DNA. Hallelujah. तो ब्लड, अय्यूब ब्लड देता था। अय्यूब ब्लड से अपने बेटे बेटियों को कवर करता था। अय्यूब को ब्लड की पावर, ब्लड कवनेंट पता था। हालेलुया। लहू की रेखा को बदरुएं लांग नहीं सकती। शैतान जाता था लेकिन लहू की रेखा होती थी, वहां एंजल्स की एनकैंपमेंट होती थी और बदरुएं शैतान को पुश कर देती थी। डीमंस और तरह तरह की गंदी रूहें उसके जीवन में इंट्रूजन करना चाहती थी, बट दे वर पुश्ड बैक बाय द हेवनली आर्मीज। हालेलुया। क्योंकि लहू, हालेलुया, लहू की कुदरत वहाँ पे होती थी। हालेलुया। आपको मालूम अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, आपको मालूम कई चर्चेस ने पुराने हिम निकाल दिए, वो गीत निकाल दिए प्रभु के जो लहू के गीत थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़े ग्रोस हैं, हम इन्हें नहीं गाएंगे। पहले समय के लोग लहू के गीत गाते थे, लहू के नगमे गाते थे यीशु मसीह के। आज पता नहीं कैसे कैसे नगमे लोग लिख रहे हैं। गॉडली फ्रीक्वेंसीज होती थी, डिवाइन हारमोनिका, हेवनली म्यूजिक होता था, खून के नगमे गाते थे, खून के गीत गाते थे। इसलिए लोग बार बार आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस, आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस, आई प्लीड द ब्लड ऑफ, वो दिन में बारंबार यीशु मसीह के लहू को महिमा देते थे। आई रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस, आई रिलीज द ब्लड ऑफ, वो इन्वोक करते थे ब्लड को बार बार इन्वोक करते थे। अपने जीवन में ब्लड को इन्वोक कीजिए, बारंबार ब्लड को रिलीज कीजिए। देयर इज awesome power in the blood of the lamb that no man can explain. लहू की कुदरत इतनी अजीम है, हालेलुया, इतनी लासानी है, हालेलुया, इतनी सामर्थी है, हालेलुया,
हालेलुया। आपको मालूम, जब अयूब के जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रेजेडी आई, आपको मालूम सबसे एक बड़ा काम क्या हुआ? जानना चाहते हैं आप? हालेलुया। मैं आपको लाइट नहीं है यहाँ पे, सॉरी, क्षमा करें, मुझे फ़ोन की रोशनी में देखना पड़ रहा है। आप मुझे अगर एक सेकंड दें तो लेट मी जस्ट पुट ऑन दिस लाइट। वन मोमेंट प्लीज़, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, जस्ट वन मोमेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, thank you Lord, thank you Jesus. Let me take you into the most powerful segment of this scripture. Hallelujah, hallelujah. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अयूब के जीवन में ट्रेजेडी आई, अयूब के जीवन में समस्या आई, तो सबसे पहली घटना क्या घटी? हालेलुया। क्योंकि अयूब बोलता था, क्या बोलता था? माई चिल्ड्रन मे नॉट हैव कर्स्ड गॉड। तो शैतान ने वही प्रेजेंटेशन की खुदावंद के आगे। हालेलुया। तो हुआ क्या, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। अयूब की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय, उसके 9 वचन से पढ़ता हूँ। देन सेटन आंसर्ड द लॉर्ड एंड सेड, डोथ जॉब फियर गॉड फॉर नॉट? हैज not thou made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? यहोवा के एंजल की इनकैम्पमेंट कहाँ थी? अयूब के इर्द गिर्द, अयूब के बच्चों के इर्द गिर्द, अयूब के घर के इर्द गिर्द, अयूब के जानवरों के इर्द गिर्द, अयूब के नौकरों के इर्द गिर्द, अयूब की रियल एस्टेट के इर्द गिर्द, अयूब की जायदाद के इर्द गिर्द, अयूब की फसलों के इर्द गिर्द, सब जगह क्या थी? हैज थी। Thou hast blessed the work of his hands and his substance is increased in the land. सेटन को सब कुछ पता था। But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord, and there was a day, शैतान चला गया और किधर आ गया? अयूब के पास आ गया। When his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. देख रहे हैं आप, जो अयूब का डर था, पार्टी हो रही है। And there came a messenger unto Job and said, Oxen were plowing and asses feeding beside them, and the Sabeans fell upon them and took them away. They all have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. सबसे पहली घटना क्या आई? गौर से सुनिए। सीबियन और ये नोमैडिक जिप्सी हैं, ट्राइबल लोग हैं। द सेबियंस फेल अपॉन देम एंड टुक देम अवे। किस चीज को ले गए ये आके? ट्राइबल लोग किसको ले गए? बैलों को ले गए। और किसको ले गए? भेड़ों को ले गए, एसेस को ले गए। सबसे पहले अयूब के किसको ले गए? जानवरों को ले गए। समझ रहे हैं आप? शैतान ने सबसे पहला अटैक किस चीज पे किया? अयूब के बेटे पार्टी कर रहे थे, उसके राइट आफ्टर अयूब क्या करता था? जगवेदी बनाता था, बैलों को यहोवा के आगे काटता था। आपको मालूम बैल किस लिए होते थे? महायाजक कुर्बानी देता था बैल की अपनी शुद्धता के लिए, ताकि उसके अपराध पाप क्षमा किए जाएं और वो यहोवा की हजूरी में इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। पहले बैल हाई प्रीस्ट के लिए होता था। सबसे पहली चीज शैतान ने चोरी की, ब्लड ऑफरिंग। अयूब ने जो ब्लड ऑफरिंग चढ़ानी थी यहोवा को अपने लिए, बीइंग हाई प्रीस्ट, और शीप चढ़ानी थी फॉर हिज फैमिली यहोवा को जगवेदी पे, सेटन स्टोल एवरीथिंग। शैतान लहू की भेंटें ले गया चोरी करके। सबसे पहली चीज यहां पे ये लिखी है। और इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद विपत्ति आ गई। जो कुर्बानी देनी थी यहोवा को प्रोटेक्शन की, ब्लड की, वो शैतान ने चोरी कर ली। समझ रहे हैं आप? शैतान बहुत
स्ट्रैटेजी के साथ आपके विरुद्ध में आता है। वो किसी का मित्र नहीं है, एंड ही इज़ रूथलेस। वो प्रभु के आगे बार बार जाता, पढ़िएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। वो प्रभु के पास जाता है बार बार, प्रभु की एक परमिशन, उसके बाद दूसरी परमिशन, उसके बाद तीसरी परमिशन प्रभु से लेता है। अय्यूब ने जिस चीज़ को यहोवा के आगे अर्पण करना था ताकि ये प्लेग रुक जाए, ताकि उसके बच्चे प्रोटेक्ट किए जाएं, ताकि वो हैज था जो उसके इर्द गिर्द वो तोड़ा ना जाए, हैज क्रिएट किया जाए ब्लड के द्वारा, वो चोरी करके ले गया शैतान। आपको मालूम, आदमी पाप में गिर गया, उसके बाद प्रभु ने विधान बनाया कि जानवर आदमी के पाप को अटोन तो नहीं कर सकते लेकिन कवर कर सकते हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि जानवरों ने यहोवा की व्यवस्था को नहीं तोड़ा, मनुष्य ने तोड़ा। जानवरों को कभी आप देखते हैं? होमोसेक्सुअल गधे देखे कभी आपने? होमोसेक्सुअल कैमल देखे कभी आपने? होमोसेक्सुअल मुर्गे देखे होंगे कभी? ये सब बदकारियां, पाप, हरामकारियां, गंदे काम कौन करता है? इंसान करता है। एनिमल किंगडम ओबेज द लॉर्ड। आपको मालूम, सिन का डेट है, हैवी डेट है। तो परमेश्वर ने जानवरों का ब्लड ले लिया, क्योंकि जानवरों का ब्लड मनुष्य के ब्लड से इंफीरियर जरूर है, लेकिन जानवरों के ब्लड के अंदर डिसओबीडियंस नहीं थी। तो जो डेट है ओरिजिनल वो अपनी जगह है, लेकिन कर्जे के ऊपर जो सूद होता है, ब्याज होता है, वो जानवरों का ब्लड उतारता था। यीशु मसीह आया, परमेश्वर का मेमना, उसने पूरे ब्रह्मांड का कर्जा अपने ऊपर ले लिया, और एक ही कुर्बानी से, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 26 वचन से पढ़िएगा, वरना उसे बार बार आके दुख भोगना पड़ता, पर वो युगों के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपनी संपूर्ण कुर्बानी के द्वारा, लहू के द्वारा, अलौकिक, पारलौकिक, अति पवित्र लहू के द्वारा सारे ब्रह्मांड की जितनी जनरेशन चली गई पीछे आदम से, जितनी जनरेशन अब है मॉडर्न टाइम्स में, जितनी जनरेशन आगे पैदा होगी अगर प्रभु के आगमन में देरी है, सबके अधर्म को यीशु मसीह ने धो दिया। हालेलुया। आपको मालूम अय्यूब क्या कहता था? एक वचन पढ़े जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, 3 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय और उसका पढ़िए 24 वचन से। जॉब 3 बिगिनिंग फ्रॉम 24। Let me read it for you. For my sighing cometh before I eat, and my roaring are poured out like the water. This is what अय्यूब कह रहा है। और अय्यूब 25 वचन में एक बड़ी रिमार्केबल चीज कहता है, For the thing which I feared greatly is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. अय्यूब कहता है, जिस चीज से मैं डरता था वो मेरे ऊपर आन पड़ी है। शायद अय्यूब के पुत्र पुत्रियां अय्यूब के मानिंद यहोवा से प्रीति नहीं करते थे। शायद अय्यूब को अपने बेटे और बेटियों को कवर करना पड़ता था। शायद अय्यूब डरता था अपने दिल में। शायद अय्यूब इस बात से भी, इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है, अय्यूब इस बात से भी शायद डरता था कि अगर यहोवा ने मुझे यह ब्लेसिंग ना दी होती, अगर यहोवा ने मुझे पुत्र पुत्रियां ना दिए होते, यश, मान, शौर्य, गरिमा, धन, दौलत ना दिया होता, बुद्धि, ज्ञान, सम्मान ना दिया होता। लेकिन अय्यूब, ये वचन को अगर हम हिब्रू में पढ़ते हैं ध्यान से, तो यही बात बताता है कि अय्यूब के ऊपर जब विपत्ति आई और अय्यूब को शैतान ने छुआ, उसके फोड़े निकले और वो राख के ढेर पे बैठ के उससे क्ले की पॉटरी, टूटी पॉटरी से अपने आप को खुरचता है, तब उसकी बीवी उसके पास आती है और उसकी बीवी उसको आके कहती है, आर यू स्टिल होल्डिंग अन टू योर इंटेग्रिटी? किस चीज के पीछे था शैतान? इन्फ्लुएंस एंड इंटेग्रिटी के पीछे। कर्स गॉड एंड डाई। कॉन्टेस्ट क्या थी स्वर्ग में? सेटन ने चैलेंज किया था, अय्यूब कर्स करेगा, ही विल कर्स, अर्थात परमेश्वर के विषय में नेगेटिव बातें बोलेगा। प्रोफेन करेगा नहीं, उसका मीनिंग ब्लैस्फीम करेगा नहीं, ही विल स्पीक नेगेटिव थिंग्स अबाउट याह, बट ही नेवर डिड। शैतान को आपके बारे में मालूम नहीं है, यहोवा को मालूम है। शैतान सोचता आपके जीवन को स्क्वीज करेगा, प्रेशर डालेगा, आप कर्ज करोगे, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि प्रभु कहता है जब टेम्पटेशन आएगी उसके साथ यहोवा निकासी भी बनाएगा, एस्केप भी बनाएगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। अय्यूब की इन्फ्लुएंस
और इंटेग्रिटी से शैतान डरता था। अय्यूब दीवार खड़ी करता था ब्लड की, लेकिन कुर्बानियां खत्म होगी। भाई और बहनों, आपके और मेरे लिए ब्लड कभी ख़त्म नहीं होगा। यीशु का ब्लड आपके और मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। यीशु मसीह का खून कभी अपनी ताकत खोएगा नहीं। यीशु मसीह के खून ने एक एवरलास्टिंग वाचा बांधी है, अनंत वाचा बांधी है। यीशु मसीह का लहू वफादारी का लहू है। वो आपके और मेरे लिए बहाया गया है, वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, हालेलुया, आपके और मेरे लिए है, हालेलुया। चांदी की खान, अय्यूब कहता है, कौन ढूंढता है? चांदी की खान अर्थात रिडेम्पशन का मूल्य यीशु मसीह का पावन रक्त, हालेलुया। यीशु मसीह के रक्त की बाड़ को शैतान तोड़ नहीं सकता। इस बाड़ को बना के रखिए अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार, अपने घराने के इर्द गिर्द ये बाड़ को बना के रखिए। डरिए मत, हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर कलाम में लिखा, परफेक्ट लव कास्ट्स आउट ऑल फियर। डर में नहीं चलना आपने। कोरोना कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू एज लॉन्ग एज यू वॉक अंडर द ब्लड। जब आप लहू के नीचे चलोगे, लहू की ढाल के नीचे, लहू आपके इर्द गिर्द बाढ़ बन के रहेगा और एंजल विल एनकैम्प अराउंड यू। यहोवा कहता है, मैं अग्नि की दीवार बन के तेरे इर्द गिर्द रहूंगा। और परमेश्वर कहता है, मेरा कलाम तू जब बोलेगा, मेरा कलाम हेज बनाएगा। 4 प्रोटेक्शन की लेयर्स होंगी आपके इर्द गिर्द। आपको मालूम, कोरोना वायरस के इर्द गिर्द एक ही लेयर है, एक ही है जो बस्ट हो सकती है और उसके प्रोटीन को इन्वेड कर सकता है, किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द 4 लेयर हैं। यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के लहू के नीचे बने रहें। हर तरह का गंदा पाप, गुप्त पाप, हरामकारी, जनाकारी, लुच्चपना, गंदी तस्वीरें देखना, प्रोफेनिटी, पोर्नोग्राफी, मुंह से कसिंग वर्ड, हर तरह की बदकारी छोड़िए। वचन में लिखा, आओ हम उस सब उलझाने वाले पाप को, बिसेटिंग सिन को निकाल के फेंकें और उस दौड़ को दौड़ें धैर्य के साथ जो हमारे सामने है। वचन में लिखा, भाई और बहनों, रात खत्म हुई और भोर का तारा चमकने वाला है, इसलिए रात के वस्त्र उतार फेंको और रोशनी के वस्त्र धारण कर लो। हालेलुया। ट्रिम करो अपनी कुप्पियों को और पवित्र आत्मा के तेल से भरो। यीशु मसीह जल्दी वापस आ रहा है। हालेलुया। अभी पूरे 10 मिनट के बाद हम प्रभु भोज करेंगे। अगर आप प्रभु भोज करना है तो प्लीज़ जॉइन अस आफ्टर 10 मिनट्स। Father, in Jesus' name, I speak the blood of the Lamb around your people. I speak the hedge of the blood. Father, I speak the fire wall around them, which is you, Almighty God. Father, I speak the angelic encampment around your people. And I speak your word that creates the hedge. Hallelujah. तेरे लहू की जय, यीशु मसीह तेरे लहू की जय। हमारे लिए बहुमूल्य लहू की कुर्बानी कभी ख़त्म नहीं होगी। अय्यूब के लिए तो जानवर मर गए, लेकिन वो लहू परमेश्वर की जगवेदी पे उंडेला गया, हमारे हक में हालेलुया बोलता है, हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। तेरे लोगों को तेरे लहू के साए के नीचे रहना सिखा खुदावन। एक एक को आशीष दे। यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको आशीष दे प्रभु। मैं आशा करता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली है और ये गहरे भेद, गहरे रहस्य हमारे जीवन को अंदर से लिबरेट करते जाते हैं और यीशु मसीह की इमेज में कन्फॉर्म करते जाते हैं। परमेश्वर का कलाम चाहिए, जिंदा कलाम। भाई और बहनों, जिंदा कलाम चाहिए, थियोलॉजी नहीं चाहिए, जीवित वचन। क्योंकि यही हमें ट्रांसफॉर्म करता है, यही हमें चंगा करता है, यही हमें जीसस की तरह बनाता है। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। राइट आफ्टर 10 मिनट्स वी विल मीट एंड हैव होली कम्युनियन टुगेदर। सबको जय मसीह की।